اے امتی وہ قرآن جو میرے قلبے اطہر پہ جو میرے اترا سنا تھوڑا سا آج مجھے تو میں سارے نوجوانوں سے پوچھنے لگا ہوں یکم محرم الحرام ہے جناب سیدنا فاروق اعظم کا یوم مبارک ہے میں سارے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں ہے وہ اینے جوگے کہ قرآن سنا لو تے سنا لو گے ذرا حضرت جی سوچئے گا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں کہ ہم اتنے جوگے بھی نہیں کہ ہم اپنے آقا مولا کو قرآن پاک ہی سنا سکیں گرم ہو جاتا ہے نا حضرت جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے ہے اب ان کو نہیں پتا میرے محبوب بھی میری تلاوت سن رہے ہیں یہ جناب وہ یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یہ قرآن حضرت ابو موسیٰ کو نہیں پتا کہ میں وہ بھی سن رہے ہیں یہ لگے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا یہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا میرے محبوب بھی میری تلاوت ہے جب یہ تلاوت ختم کر کے اٹھے نا پیچھے نبی پاک علیہ السلام جلوہ کر رہے آپ نے فرمایا ابو موسیٰ بڑا سونا قرآن پاک پڑھا دیتے ہیں میں نوجوانوں سے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا ہی سونا قرآن پڑھا پتہ کیا عرض کرتے ہیں محبوب آپ سن رہے تھے آپ نے میری تلاوت سنی آپ نے فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں نے تیری تلاوت عرض کرتے ہیں محبوب اگر پتہ ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں پتر گرم ہو جائے وہ خواب ہو یا بیداری ہو اگر نبی پاک علیہ السلام خواب میں یا بیداری میں ہو میرے امتی سنا آج قرآن میں میں نہیں ہوگا آتے ہی نہیں اس لیے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو آج پتر سارے تو ارادہ کر کے اٹھو اپنا قرآن پاک ٹھیک کرنا ہے پکی بات ہے صحیح کچا نہیں ڈنڈے نہیں مارنی کرو جی قاری صاحب ماشاءاللہ کوئی بھی حضرت جو اچھا معروف پڑھتے ہیں لہنے جلی نہ ہو ٹھیک ہے سکھو پتر خوف آتا ہے اگر ہو جائے ہو سکتا ہے بڑے بڑے بزرگوں کے لیے لکھا ہے نبی علیہ السلام تشریف لائے ان کا قرآن پاک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد صاحب کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے قرآن پاک سننے کے لیے اس لیے پتر قرآن سیکھیں گے نا سارے اور پتر میں صحیح کہہ رہا ہوں چنگیاں ہوں حضرت جی 2 نمبر پیران دیاں دکھانا چلیاں 1 نمبر کے تو ہم نوکر ہیں جی دیکھو نا اللہ حضرت نے حکم کر دیا مجھے شرم آ رہی تھی میں مہاروی صاحب کو کڑے منہ سے شیلڈ پیش کروں میں ان کو دوں گا حضرت بڑے لوگ جڑے سچے پتر اسی نوکران دے نوکر ہونا دے اسی تے چون چران نہیں میرا پتر ان کو تو دیکھ دیکھ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ان کو تو دیکھ دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں لیکن جڑے نا دوجے بہت کام خراب کیتا ہے حضرت نے بہت کام خراب کر رکھا ہے انہوں نے لیکن دکانیں چل رہی دکانیں دبا دب چل رہی ترتیا ہویا ہے کالا ہویا ہے کچھ بھی نہیں ہوا اب ذرا سن لو میرے حضرت ایک دوست ہیں بڑے پیار والے وہ بڑے پریشان ہو کے آئے میرے پاس مجھے آگے کہتے ہیں حضرت ذرا نگاہ والے ہوتے ذرا وکھو ہاں میں تو جی سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی ہو جاتا ہے یہ آخری میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا تھا وہ میں نے بیچ کے
शुरू किया है काम, तो हज़रत अब अगर ये काम ना चला तो मैंने सड़कों पे आ जाना है। ज़रा नज़र मैं क्या भैया मैं कितने नज़र आना, अल्लाह माफ़ करे। हैं जी, मैं इस बात पे शुक्र नहीं अदा से करने मेरे ऐबों पे पर्दे डाले हुए। नज़र वाले तो ढूंढने से नहीं मिलते हज़रत, हैं उन्हें नहीं हज़रत, लेकिन बंदे की नीयत ठीक हो ना फिर अल्लाह कर्म कर देती है। वो अल्लाह ने कर्म किया, दिल में बात है। मैंने कहा इस तरह कर घर जा, अल्लाह मेरे लिए मशहूर है कि फ़ोन नहीं उठाता, ज़रा मजबूरी है क्या करूँ, कल्ला बंदा हूँ, कुछ उठा लिए जाते हैं कुछ नहीं। अब भी आप मेरा फ़ोन देखें कम अज़ कम 100 तो उत्ते हज़रत में इसका नमजी होनी, मैं अब क्या करूँ। उस 100 में किबला मुफ्ती साहब भी गए, उस 100 में किबला असद साहब भी गए, 100 में जनाब शेख आसिफ साहब भी गए, मैं क्या करूँ, कल्ला बंदा हूँ। कुताही है जो है बड़ी करके क्या इसका हल निकालूं, अभी तक को समझ नहीं आ रही। वो मैंने उसको कहा पुत्रा ए फ़ोन मेरी चोली सी, मैं फ़ोन नहीं तेरा, मैं सिर्फ घर जाके दस। वो कुछ 2.5 घंटे बाद मेरी उसकी कॉल आई, कहता है जी वो मैंने वो अपनी बच्चों की अम्मी से पूछा है तो हमने पूरा अपना घर चेक किया है, तो हमारे घर में ना टोटल मुख्तलिफ मकामात पे 7 कुरान पाक के नुस्खे पड़े हुए हैं। एक उस कमरे में पड़ा है, उस कमरे में पड़ा है, उस कमरे में पड़ा है, ड्राइंग रूम में पड़ा है, हॉल में पड़ा, टोटल हमारे घर में 7 कुरान पाक। मैंने जो कहा जाके पूछ घर में कितने कुरान पाक, उन्होंने कहा जी 7 कुरान पाक। मैंने कहा ठीक हो। मैंने कहा अपने बच्चों की अम्मी से मुझे फिर ये पूछ के बता कि कुरान पाक तो 7 पढ़े हैं, लेकिन इन 7 कुरान पाक में से कितनों पे तिलावत करते हो? कितने कुरान पाक हैं जो तुम्हारे घर में खुलते हैं? कितने कुरान पाक हैं जिनको खोल के तुम कुरान पाक की तिलावत करते हो? 1.5 मिनट बाद फिर उसकी दोबारा कॉल आई, वो हजरत मैं तो आगे कारोबार में बड़ा परेशान हूँ, मारा फिरता हूँ और बस टाइम नहीं लगता, बच्चे छोटे छोटे हैं, एकेडमी कॉलेज ये वो, उनको भी टाइम नहीं लगता। जो बच्चों की अम्मी है वो बच्चों में थक जाती है, उसको भी टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा भाई अब मुझे तू खुद बता, जिसके घर में रोज 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत करें, या अल्लाह मैनू खोलदा नहीं, मोबाइल छड़ता ही नहीं। मुझे सच बताओ कैसे घर में सुकून आएगा, कैसे घर में रहमत होगी, और भाई कैसे रिज्क में बरकत आएगी, को मुझे भी तो बताओ ना। जिसके घर में रोज 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में शिकायत करें, या अल्लाह मैनू खोलदा नहीं, मोबाइल छड़दा नहीं, मैनू खोलदा नहीं, टीवी छड़दा नहीं, टीवी छड़दा ते रिमोट छड़दा ते टीवी छड़दा ते मोबाइल छड़दा ते टीवी छड़दा ते मैं पढ़ा हूं, मुझे कभी खोल के इसने देखा नहीं। मैंने कहा बता तेरा कारोबार किधर से चले। अच्छा अब हो सकता है आप बात करें जी हजरत साहब नवी गाल ही सुनाई जी, किस लिए ही ये शिकायत, मैं तुझे बता के जाऊंगा। इसका आमिल होगा, इसको हर रात पढ़ के सोता होगा। लिखा है जी आगे जाके अमाल तुलने हैं, फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। नेकियां कम पड़ जाएंगी, गुनाह ज्यादा होंगे, हुक्म जहन्नम का होगा। लिखा है सूरह मुल्क आ जाएगी, आके अर्ज़ करेगी रब्बे करीम मुझसे प्यार करता था, कभी मेरे पढ़े बगैर सोया नहीं, मैं आज इसको जहन्नम में नहीं जाने। सारा कुरान नहीं, सिर्फ सूरह मुल्क। हुक्म होगा नेकियां थोड़ी हैं, गुनाह ज्यादा हैं, जन्नत में नहीं जा सकता, जहन्नम जाना पड़ेगा। झगड़े के अल्फाज हैं, सूरह मुल्क झगड़ा करेगी, अर्ज करेगी रब्बे करीम अगर मुझसे प्यार करने वाले, अगर रोजाना मुझको पढ़ने वाले को अब तू जहन्नम भेजेगा मेरे सामने, तो फिर इस तरह कर, फिर मुझे कुरान पाक से निकाल दे। लिखा है सूरह मुल्क को तो कुरान पाक से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ सूरह मुल्क से प्यार करने की वजह से बंदा जन्नत में चला जाएगा। मैं कहता हूं भाई अगर उस दिन सूरह मुल्क लड़ सकती है, आज सारा कुरान शिकायत भी नहीं ला सकता। लगाता भाई लगाता। और मैंने हजरत मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैंने 2-3 बातें और भी करनी है। अभी मैंने सिर्फ पुत्र कुरान शरीफ का नाम लिया है, अभी तो मैंने उन तस्बीहों का नाम ही नहीं लिया, तेरे घर में ढेर पड़ी हुई है। एक फुफ्फो गई उम्रे ते लेके आई, एक खाला गई उम्रे ते लेके आई, एक चाचा गया उम्रे ते लेके आया, ढेर तस्बीहां दा पिया। ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਬਟਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ बटन ਤੇ दबा सकती ने, मेरे मणके नहीं ला सकती। इसकी उंगलियां रिमोट पे तो चल सकती हैं, मुझ पे नहीं चल सकती। इसकी उंगलियां मैसेज तो लिख सकती हैं, इसकी उंगलियां सुभान अल्लाह नहीं कर सकती। अभी तो भाई मैंने उन मुसल्लों का नाम नहीं लिया जो घर में ढेरों पड़े हुए, इन पे कभी किसी ने सजदा ही नहीं किया है। सच बताओ जी, किसी को लोड़ है साडे ते काला इल्म करने? किसी को जरूरत है हमारा रिस्क बंद करने? हमने अपना आप ही बंद किया हुआ। रोज कुरान पाक जी क्या कहता है, या अल्लाह मोबाइल छड़दा नहीं,
मैनू खोल दे, मैनू पढ़ दे। खोलोगे ना आज के बाद कुरान? हाँ, मैं माशाल्लाह हज़रत साहब बड़ा सोना, दिल खुश होता है हज़रत देख। और मुझे एक और बड़ा खुशी हुई आज, वो जब असद भाई ने लगाए ना वो हैदर हैदर के नारे, मैं देखो इसको कहते हैं अहले सुन्नत, इसको कहते हैं दिन हज़रत उमर फारूक दा नारे हज़रत अली दा लगन दे। फिर हमें ताना देते फूंक दिया दे ओए ये नहीं सुन्नी और ये सुन्नी, दिन हज़रत फारूक आज़म का नारे हज़रत अली दे लग रहे हैं। कहते फूंक दिया दे नहीं मियां जी, इसके अहले बैत ताड़े अल फूंक दे अबू बकर, उधर फूंक दे उमर, उधर फूंक दे, इसको कहते हैं अहले सुन्नत। दिन हज़रत उमर फारूक दा नारे लगन हज़रत अली दे। मेरा अल्लाह या अबू बकर नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। एक मर्तबा फिर मजमा भी बढ़ गया। जितने लोग हैं खड़े हैं ईमानदारी के साथ बैठे, सब दोनों हाथ बुलंद करके कहेंगे हैदर हैदर हैदर। सारे जय नस्ब अशरफ में मौला अली के रोज़े पर खड़े होकर कहें हैदर हैदर हैदर। दिल में सरकार फारूक आज़म की मोहब्बत डाल के कहो हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। इसको कहते हैं आले सुन्नत, इसको कहते हैं मसल के रज़ावत। दिन हज़रत उमरे और नारे रखी लगन डे नहीं है, इसको कहते हैं आले। पुत्र फितनों का दौर है, स्पेशल जो सामने बच्चे बैठे हो पुत्र, हमें बहक न जाना, भटक न जाना। और हमारे बुजुर्ग का करते थे, घर बदल नहीं, कपड़े बदल नहीं, घड़ी बदल नहीं, अंगूठी बदल नहीं, मल्ला बदल नहीं, लेकिन अकीदा बस। पुत्र ये जो नई तहकीकें सुना रहे हैं, हम इनकी तहकीकों को नहीं मानते। साढ़े लई मेरे अली दी तहकीक बड़ी है, साढ़े लई जमात अली शाह साहब की तहकीक बड़ी है। ये जितनी नई नई स्टोरियाँ सुना रहे हैं बिल्कुल, बल्कि मैं क्योंकि मौजू फिर थोड़ा उधर चला जाएगा। ये बड़े अहबाब आने हैं जिन्होंने ये मौजू बयान करना है, मैं तो थोड़ी सी बरकत ले रहा, मेरे वाला मौजू नहीं है, मैं माड़ा आदमी हैं। ये याद रखना पुत्र, मोहब्बत मोहब्बत, अबू बकर अली मोहब्बत, उमर अली मोहब्बत, उस्मान अली कोई दूसरी। और ये मोहब्बत का फैसला कुरान ने किया पुत्र, कुरान के आगे कुछ नहीं। कुरान क्या कह रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। बस फैसला। और मैं एक बात करके वापस आ जाऊं पुत्र, किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा है। कभी कुछ इस तरह का मामला बनता ना कि हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन ये मिलते ना, खो जाते हज़रत, काफ़ी देर हो जाती, घर ना आते मिल। पता है मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कशाने मुबारक से क्या आवाज़ उठा करती थी जब शहजादे मिलते नहीं थे? क्या आवाज़ आती थी उस मुबारक घर से? उस घर से एक की आवाज़ आती थी, अबू बकर के घर देखो वहाँ ही होंगे। एक ही आवाज़, एक ही आवाज़ हज़रत, एक आवाज़ हज़रत। कोई नहीं, उधर देखना, उधर ना मिले तो उधर देख लेना, उधर देखना, उधर ना मिले तो उधर देखना, उधर ना मिले तो कोई उधर। एक की आवाज़ आती थी, शहजादों को देख लेना, अबू बकर के घर में होंगे। ओए बच्चियों, ओए सुन्नी नौजवानों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दसो और बच्चे कहाँ जाते हैं? वहां जाते हैं जहाँ प्यार मिलता है। नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर, या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर, या सिद्दीक या उमर या सिद्दीक या उमर। सारे ऊंची आवाज से बोलो, हाथ खड़ा करके, या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर, या सिद्दीक या उमर या सिद्दीक या उमर। नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए हक, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत।
मामला बन जाए ना तो कोई, तो हम क्या कहते हैं भाई पहले उधर देखना, उधर ना मिला तो उधर देख लेना, उधर ना मिला तो हम चांस पे की, लेकिन वो थे की आवाज अबू बकर के घर में देखना लगा। कुरान ने कहा ना रुहमा हो गई ना, ये तो जितनी मर्जी स्टोरियाँ कहानियाँ पे सुनाए, फकी तो फिर बेचनी है ना, तो फकी बेच रहे हैं। हम कुरान वाले, हम सुन्नत वाले, हम सहाबा वाले, हम अहले बैत अतहार वाले, कोई अपना अकीदा चुप सी भी नहीं करनी पड़ती, हक बजानी भय दरे कर रहा, ये अकीदा। लेकिन पता एक फिजा इस तरह की जानबूझ के पैदा कर दी गई है कि किसी का भी ना जी बहुत एक फिजा इस तरह की बनाई जा रही। नहीं इधर जी मैं सर भाई मैं तेन अपने दिल की गल दसा, मैं तुम उत्थे जाके गले लाना है, मेरा दिल करता है मैं तेन कुट के जफा, मेरा इतना दिल खुश हुआ कि यार देखो यही हाल सुन्नत है भाई। देखो ना अल्लाह माफ़ करे अस्तगफिरुल्लाह कि अगर हमारे दिल में इतना भी हो हम मैं जैसा साहब ना लड़ पाऊँ, मैं साहब तुम की करन डे हजरत उमर फारूक का दिन ने तो तुम हजरत अली के नारे लाने, ये हाल सुन्नत दिन उमर फारूक का नारे हजरत अली के लग रहे। और मैं पक्की बात कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम है, मेरा वजद कहता है जिवें मैं खुश होया मेरे तो ज्यादा हजरत उमर फारूक खुश होए होंगे। जो ये बता रहे हैं वो तो नहीं था ना, मैं कहता हूँ मेरा इस मस्कीन का दिल इतना खुश हुआ है मेरे हजरत उमर के नहीं अली के नारे लग रहे, क्योंकि उन्होंने हमें, अगर हजरत तुम बातें करते हो ये हमें उन्होंने बताया क्या, और जिक्र अली भी इबादत है और अली को देखना भी इबादत है। किसने बताया? अबू बकर ने बताया। किसने बताया? उमर ने बताया। हजरत उमर भी खुश हुए होंगे, मजा ही आ गया, दिन मेरा ते ना ये इसको कहते हैं आले हिला के दसो कदी नारा उथे कोई लाओ भला कदी, इसको कहते हैं आले यकम मुहर्रम उमर फारूक का दिन, वो नारे हजरत अली पाक। इसलिए पुत्र कुरान पाक खोलो अपने कराची, यही पैगाम है मेरे पुत्रों। ये अगर नहीं किया तो फिर अपने चस्के लगा रहे हो, लगाओ जितनी मर्जी लगा लो, लेकिन अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं पुत्र। कुरान है। अब वो लिखा है जी नबी अलैहि सलाम ने तिलावत फरमाई, कितने सहाबा रो पड़े, लेकिन कुछ थे नहीं आया रोना। अब जिनको रोना नहीं ना आया उनमें से एक सहाबी बाकी सब की तर्जुमानी करते हुए करते हैं महबूब अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया मैं सूरह अल-हाकुमुत तकासुर की तिलावत करूँगा तो सुन के जो जो रो पड़ा उसके लिए जन्नत है। काफ़ी भाई रो पड़े, कोशिश हमने भी बड़ी की, रोना नहीं आया। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? क्या हम आपके दरबार से जन्नत लिए बगैर जाएंगे? हम बगैर जन्नत के जाएंगे? यहाँ तो कोई कभी खाली गया ही नहीं है। ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि जो तेरे लब पे नहीं है। वो हम जन्नत के बगैर ही जाएंगे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा मैं फिर सूरह अल-हाकुमुत तकासुर की तिलावत करूँगा तो सुन के जिसको रोना आ गया ना उसके लिए जन्नत है। और हाँ जिसको रोना ना आया वो रोने वाला मुंह ही बना लेना है। मुझे पता है वो दीवानगी वाला मामला, लेकिन पुत्र जब उनका नाम आए ना तो एंडी दीवाने बन जाया करो। लेकिन दरूद पाक पढ़ा करो पुत्र। इतने बंदे बैठे होंगे अपने दी गल नहीं कर रहे, और वो पुत्र भेजते हैं पीछे रिपोर्टें, ये कुरान एवं ही नहीं जला पुत्र। पता नहीं पहले कितनी बार वो सर जोड़ के बैठे हैं, फिर उन्होंने ये काम किया। उन्होंने पता नहीं कितने आपको और मुझे टेस्टर लगा के चेक किया कितने के जोगे ने हो जाता है। उनको पता हो हजरत इनमें अभी भी स्पार्क या करंट है, ऐसी की तैसी उनकी वैसे करें। उनको पता है कि अब ये नकीब गए तो सुभान अल्लाह कहते हैं, अब तो कोई नहीं कहते हैं। अब इनको खतीब साहब दूसरी बार खुद दुरूद पाक पढ़वाते हैं। उनको पता है पुत्र बैठे हैं बंदे इधर, वो आपको नोट करते हैं, वो आपको देखते हैं, और फिर फैसले होते हैं कि क्या हुआ। जब उनका नाम पाक आया क्या किया इन्होंने, जब ये दुरूद पाक पढ़ रहे थे कैसा अंदाज था, कितनी मोहब्बत थी। इसलिए पुत्र जब भी आए ना उनका नाम दीवानों की तरह, ताकि वो अगर को बैठा ना वो पीछे रिपोर्ट लिख के भेजे क्या कोई उन तिटले हो गए नहीं, लेकिन जो उन्होंने दी वारी है फिर कख नहीं ये वेखते है।
कख नहीं। इसलिए पुत्र अमल की तरफ आओ और कोई लाया बहुत वक्त ज़ाया कर चुके हैं, अब हमारे पास ज़ाया करने को कुछ नहीं है पुत्र, अब लाया अमल बनाओ, अब काम की तरफ आओ। मैं अक्सर ये गुनाहगार कहा करता पुत्र सीटा खाली ने बंदा कोई नहीं। सलाहुद्दीन अयूबी की सीट खाली है, बंदा पुत्र है वो सीटा नहीं कि तक की फड़ के भर्ती कर लीए, नहीं इतने भर्ती की दरखास्त देनी पैनी है। हैं तारक बिन ज़ियाद की सीट खाली है पुत्र, बंदा कोई नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम की सीट खाली है, बंदा कोई नहीं। नूरुद्दीन जंगी की सीट खाली है, बंदा कोई है। टीपू सुल्तान की सीट खाली है, बंदा कोई। ये तो नहीं कि गया तो नहीं, जो जाएगा पहले उन्होंने चेक भी करना है, अंदरों भी एक के तो बाहरों भी एक के अंदरों को जो हो रहे तो बाहरों को जो हो रहे, चेक होना पहले, ऐसे नहीं होता। ये मैं पीछे भी सुनाई है, सैयदना ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ज़माना मुबारक था। किसी नौजवान को पता चला कि हज़रत ज़न्नून मिस्री इस्म आज़म जानते हैं हज़रत, वो हज़रत की बारगाह में आया और आके अर्ज़ करता है हज़रत वो मुझे पता चला है आप इस्म आज़म जानते हैं। तो आपने फरमाया फिर अर्ज़ करता है हज़रत फिर मुझे भी बताएं। आपने फरमाया चलिया इस तरह तो कोई भी नहीं बताता। अबलते को लबदा नहीं भरे प्याले, अबलते को लबदा ही नहीं भरे प्याले वाला, जे को लब जाए तो देंदा नहीं एक नवाला। ऐसे मिलता है, जान की बाजियां लगा के सौदे मिलती है। मरन तू पहला मर गए बाहू ता मतलब नू पुज्जे हूं, ये जान की बाजी लगा के सौदे मिलते हैं। पर मैं तुझे किसने कह दिया कि इस तरह मिल जाता है? कुछ वक्त गुजार मेरे पास, फिर देखते हैं। देखिए पहली नजर में लेते हैं पांडा ने जोगा है वे के नहीं है। देख हजरत ने भी लिया लेकिन नरम दिल लोग दिलदारी नहीं करते थे, कहा खुद ही चला जाएगा हजरत। लिखा पूरा साल उसने हजरत की सोबत में गुजारा। जब साल पूरा हुआ ना उसने कहा आज हजरत ने अगर कुछ ना भी ना कहा मैं खुद ही अर्ज करूंगा हजरत पूरा साल हो गया, सिखाना सिखाए नहीं तो मैं कहीं और जाऊंगा। हजरत भी तैयारी में थे। लिखा जब वो हजरत की बारगाह में आया ना आके अर्ज करता हजरत पूरा साल हो गया मैं इसमें आज़म सीखने आया था, आपने तो सिखाया कोई नहीं, आप भी पहले तैयार थे। लिखा है हजरत ने ना उसको एक बर्तन थमाया जो एक कपड़े में लिपटा हुआ था, ऊपर कपड़े की गिरा लगी थी। फरमाया वो तुझे बाद में बताएंगे, पहले ये बता अगर मैं कोई काम कहूँ तो कर देगा। उसने कहा हजरत हुक्म। फरमाया नदी के उस पार मेरा एक दोस्त रहता है, ये बर्तन उसको दिया। उसने बर्तन उठाया और खानकाह से बाहर निकल आया। जब उसने बर्तन उठाया तो मैंने पढ़ा है कि बर्तन बहुत बड़ा लेकिन बर्तन का वजन कोई नहीं। हजरत ने मेरे साथ क्या मजाक किया, इतना बड़ा बर्तन थमा दिया, वजन ही कोई नहीं। खोल के देखता हूँ इसमें कुछ है भी कि नहीं। फिर ख्याल आया नहीं अमानत में खयानत नहीं करते हैं। फिर थोड़ा आगे गया, फिर ख्याल आया खोल के तो देखूँ इसमें कुछ है भी कि नहीं। कहा नहीं अमानत में खयानत। वो करते करते जब नदी के पुल पे पहुंचा ना नहीं रह गया। उसने जनाब पहले ऊपर से कपड़ा खोला, फिर उसने वो बर्तन का ढक्कन उठाया तो लिखा है एक चूहा निकल के भाग गया। अब समझ वो भी गया पे कि अब आगे जाने का कोई नहीं, पीछे चाल वापस। वो जब लिखा खानकाह में पहुंचा हजरत भी तैयार। आपने फरमाया तू कहता है तेरे सीने में रब के राज डालूं, तू कहता है तुझे इसमें आज़म बताऊं, तू कहता है तेरे सीने में रब के राज डालूं और तुझे एक चूहा दिया था वो तो तुझसे संभाला नहीं गया, तू रब के राज क्या संभालेगा? हम तो मायल करम है कोई सायल ही नहीं। किसके सीने में डाले वो आए तो सही इतना पाक सीना देखे बारों बारी फेर न कुड़िए हूं जंदर दे कूड़े। ये तो सारे बाहर उजला करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, फलाना साबन फलानी क्रीम फलाना फिशल साढ़े भी कदी इन्होंने साफ किया ही नहीं जो असी देखना है। कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया। बल्कि मैं यहाँ हज़रत जी लिखा है बुलबुल शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मोहल्ले का कोई बंदा ना हज पे जाने लगा तो हज़रत की बारगाह में आया। हज़रत वो जा रहा हूँ तो कुछ खास बातें इरशाद फरमाई। हज़रत ने कोई तरबियत की होगी उसकी। हज़रत चला गया मुख्तसर करूँगा, वापस आया, वापस आके ना फिर हज़ूर बुल्ले शाह की बारगाह में आया। हज़ूर वापस आ गए, फरमाया भाई यार दे शहरों आए हैं कोई गल सुना। फिर उत्थे उन्हें की गल सुनानी सी हज़रत जी बेचारे मेरे यार गल कभी उत्थे तस्वीर खिंची तो वापस आ गए। हैं जी वो यार मैं वैसे हाथ जोड़ के अर्ज करांगा वो कोई अज उमरा तो इंज दा करिए कि जिदे दी चले हैं बस उन्हें दस के जाइए यार, कोई तो इंज दा करिए यार, खुदा दा वास्ता करूँ टुरना है तो जरूर नहीं है। अब निकलते हुए अब गाड़ी में बैठते हुए अब एयरपोर्ट पे पहुंचते हुए अब जनाब वो बोर्डिंग करवाते हुए अब जहाज़ में जाते हुए अब सीट पे बैठते हुए अब जनाब उड़ते हुए अब उतरते हुए होटल जाते हुए उम्रे के लिए जाते हुए ये करते हुए वो भाई कोई तो कहने का करिए कि जिधर ही चल रही सिर्फ उन्होंने दस के जाई मौला मैं आन लगा
कहता एक ही कर ली करूं शुरू नहीं हजरत जी एक तो करिए यार सिर्फ जिधर चले दो नफर पढ़ के अर्ज कर मौला मैं वो बेचारा मेरे वर्गा सी हजरत उन्हें की दसना सी वो ना हड़बड़ा सा गया क्या बुल्ले शाह साहब को कहता अगे भी बुल्ले शाह ही को मेरे वर्गा होंदा ते सुनास में चढ़ता कहानी जड़ा बाहरों भी अन्ना अंदरों भी अन्ना सामने बुल्ले शाह साहब बैठे क्या कहानी सुनाता हूँ था ही नहीं कुछ सुनाने को उसको इतनी बात ही समझ आई वो फिर वदी अर्ज करता है हजरत मैं जब गया ना सेन हरम में मताफ में आपको क्या बताऊं वहाँ तो नूर ही नूर था हुजूर बुल्ले शाह को पता थे इन्हें जोगा भी कोई नहीं कि नूर भी देख लगे फिर हजरत बुल्ले शाह ने फिर फौरन लिखे हजरत इधर अशार आप क्या कहते हैं तेन काबे विच पिया नूर दिसे वो लैटा ही वेख आए हैं लैटा ही वेख आए हैं लैटा तो होर भी बड़ियां लगियां मीनारे पाकिस्तान लैटा ही वेख आए हैं तेन काबे विच पिया नूर दिसे साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे फरमाया तेनू काबे विच पिया नूर दिसे ओए वेख कसूर बह के साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे मैं को नेड़े ताकू दूर वसे बल्कि हुजूर बोले शाह साहब इतना बताएं ताडे नजदीक क्यों मेरे तो दूर क्यों दो ही अखां ताडियां दो ही मेरियां जिन्ने दंद ताडे ओने ही मेरे जिस तरह तुसी आए मैं भी आया ताडे तू क्यों दूर ताडे तू क्यों नेड़े मेरे तू क्यों दूर फिर आखिरी मिसरे में हुजूर बुल्ले शाह ने जवाब दिया फरमाते तेनू काबे विच पिया नूर दिसे साडे बुत खाने विच पिया हुजूर वसे मैं को नेड़े तैकू दूर वसे तेरे अंदर बार पलीती है तेरे अंदर बार पलीती है पलीती साफ कर फिर तेरे अंदर भी वसेगा तेरे अंदर भी पलीती साफ बारों बारी फिर न कुड़िए हूं अंदर कूड़ा उन जो कूड़ा पुत्र साफ करो इन्हें और ये हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला के लिए लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते से आबाद खिदमत थे और मैं कहता हूँ हजरत जी क्या मंजर था आए आए उन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा क्या हजरत वो कुर्बान जावा जी उन अखां तो जिन्होंने उन्होंने वेख्या और फिर उन्होंने वेखण वाले वेख्या क्या हजरत वो लिखा है जी नबी अलैहिस्सलाम ने दरवाजे की तरफ इशारा फरमाया जब सबसे पहले इस दरवाजे से दाखिल होगा वो जन्नती है अब सहाबा नबी अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत कर रहे हैं उस साथ में दरवाजे की जानिब भी तवज्जो कौन आता है लिखा सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आए अब कुछ सहाबा उठ के न गए और कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था सबसे पहले आप आए अब बताएं कौन सा वो अमल है जो आप छुप के करते हैं जिसकी वजह से आपको उम्मीद है कि आप जन्नत में जाएंगे कुर्बान जाऊँ हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम आगे से कहने लगे मैं कमज़ोर आदमी हूँ मैं कमज़ोर इंसान हूँ ऐसा तो कुछ नहीं हाँ एक बात है जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि मैं जन्नत में जाऊँगा और फरमाया वो क्या है मेरे सीने की सफाई मेरे सीने की इस सीने में किसी के लिए बोझ नहीं इस सीने में किसी के लिए कीना नहीं है इस सीने में तकब्बुर नहीं है उज्ब नहीं है साफ बहुत कुछ है हमारे पास ये वो लेकिन ये सफाई मुयस्सर है पर मैं सीना साफ है सीना साफ और मैं जितने नौजवान बैठे हैं मैं कह रहा हूं पुत्र सिर्फ अपना सीना साफ करो फिर देखो वो तुम्हारे सीने में अपने कौन कौन से राज डालता है और पुत्र जितना सीना साफ करने में हम कामयाब हो गए और जो वो अपने रंग सीने में रखेगा पता सबसे पहले कौन सा रंग रखेगा बेनियाजी इकबाल ने कहा था दो जहां से बेगाना करती है दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई जितना तू धो लिया जिस दिन तू मांझ लिया वो जो अपने राज तेरे सीने में रखेगा ना सबसे पहला जो राज तेरे सीने में रखा जाएगा वो होगा हजरत जी बेनियाजी ऐसी बेनियाजी ये हजरत सैयदना सालिम रज़ी अल्लाह तआला ये नौजवानों के लिए ये तवाफ़े बैतुल्लाह कर रहे थे ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਜਨਾਬ MNA ਤੇ MPA ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ
पागल शदाई हो जाते हैं साडे मुंडे इधर देख देख के। सुन बेनियाजी जिन्होंने सीने साफ किए, फिर क्या डाला गया उनके दिलों में? लिखा जी मंसूर आ गया और हजरत सालिम तवाफ़े बैतुल्ला कर रहे थे। जैसे मैंने शुरू किया प्रोटोकॉल, तवाफ रुकवा दिया गया मंसूर के लिए। जनाबे सालिम ने तवाफ नहीं रोका, फारूकी खून था हजरत जी, आप तवाफ करते रहे। मंसूर को बड़ा ही गुस्सा आया, उसने कहा ये कौन है जिसने तवाफ नहीं रोका मेरे लिए? बताया गया सालिम है। बड़े गुस्से से गया हजरत सालिम के करीब, मौलवी तू मेरे लिए तवाफ नहीं रोके? लेकिन लिखा जब हजरत के करीब गया सारी गुब्बारे से हवा निकल गई, क्योंकि हजरत जी इल्म का भी बड़ा रोब होता है और अमल का भी बड़ा रोब होता है। इमाम अहमद बिन हंबल की खिदमत में कुछ लोग आए, आके अर्ज की थी हजरत जड़ियां किताबां तुसी पढ़ियां ने, असी भी वही पढ़ियां ने, लेकिन जो रोब आपका है लोगों के दिलों पे वो हमारा नहीं है। जनाब इमाम अहमद ने कमाल जवाब दिया, फरमाया सुन ओए किताबां इको जहियां पढ़ियां ने, अमल नहीं को जया कोई। इल्म का भी रोब, अमल का भी रोब। बड़े गुस्से से आया आपके करीब, आते ही हवा निकल गई गुब्बारे से सारी। अब फिर हजरत जी उसने दूसरा काम किया, जिथे आके बड़े बड़े दीवार निकल जाते। क्या? बाबा कायदे आजम, बाबा कायदे आजम नोट हजरत। उस वक्त तो ज़ाहिर है दिरहम और दिनार चलते थे। वो ना हजरत के करीब जाके कहता है हजरत मुझे प्रोटोकॉल देने के लिए तवाफ रुकवाया गया, हजरत ने नहीं दिया, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं हजरत को कुछ पेश करना चाहता हूँ, कोई हुक्म करें। खड़े हुए हजरत जी गैरत इश्क से रंग सुर्ख हो गया। फरमाया मंसूर तुझे शर्म नहीं आती? रब के घर में खड़ा होके मुझे दावत गुनाह देता है। मंसूर ने अर्ज की हजरत मैं खुश हुआ हूं आपके कमल की वजह से, आपको कुछ पेश करना चाहता हूं, दावत गुनाह क्या हो गई? फरमाया मंसूर कैसी बातें करता है, वो इससे भी बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? खड़ा अल्लाह के घर में हूं, मांगू तुझसे। बेनियाजी पुत्र, बेनियाजी, साफ तो करना जिथे बेनियाजी का दीवा बनना है साफ तो करना। जहां ये बेनियाजी की दौलत रखी जाएगी इसको साफ तो कर दे, काट इसको अंदर से गंदगियां सारी साफ कर, पहले इसको मांझ इसको। हैं? हजरत ने क्या के तवाफ शुरू कर दिया। हजरत सुकून उसको फिर भी नहीं आया कोई। हजरत ने 7 चक्कर पूरे किए, मकाम इब्राहिम पे नफल पड़े, आबे जमजम पिया, हजरत तशरीफ ले गए। लिखा ये पीछे गया हजरत पे। जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकल गए इसने जाके फिर हजरत सालिम का हाथ पकड़ दिया, अर्ज करता है हुजूर गलती हुई माफ कर दियो। फरमाया कीता, अर्ज करता है हजरत हूं ते मस्जिद चू बाहर हूं मांग लो। आपने फरमाया मंसूर अब तू ही बता, अगर तू इतना ही देना चाहता है दीन मांगू कि दुनिया मांगू? उसने कहा हजरत दीन के तो आप बादशाह हैं, मुझे अल्लाह ने दुनिया की बादशाहत दी है, दुनिया में से कुछ मांग ले। आप रो पड़े आगे से। आपने फरमाया मंसूर तू किस तरह की बातें करता है, और जिस रब ने दुनिया पैदा की है मैंने कभी उससे नहीं मांगी है, तुझसे कैसे मांग लूं? है दो जहां से बेगाना करती है दिल, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हमी तो नहीं पुत्र किसी ने लिखा, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हुआ का जिनका तेरी गली में है। इसलिए पुत्र आओ मंजू मैनू यार इनू साफ करो ना वास्ते है, फिर देख अगर तू साफ करने में कामयाब हुआ फिर देख रखते क्या क्या है। आलम है फ़कत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहबे औलाद। मैं किसी की निजी किताबें तो खरी पढ़ी है, अगर कोई नहीं मानता तो ना माने, अगर किसी को बाबू से तकलीफ है तो रहे भाई। वो भी तो एक था ना इबलीस, उसको भी तो बाबा से तकलीफ है, उसको भी तो बाबा आदम से तकलीफ हुई थी। इतनी तकलीफ क्या कहता है, अना खैरुम मिन्हु, बिल्कुल वही जुमले बोल रहा है ये भी। बाबे थे खैर कोई नहीं, उन्हें भी यही किया सी, अना खैरुम मिन्हु। इंजीनियर साहब सोनी लगी फकी है फक्का फक्का, उन्हें भी यही किया सी, कहता आदम से शायद कोई नहीं, अना खैरुम मिन्हु। तू भी वही बकवास कर रहा है और बता रहा है कि तू इब्लीस का मानने वाला है और हम हजरत आदम के मानने वाले हैं। उसने कहा शायद कोई नहीं, और अगू अल्लाह फिर क्या कह रहा है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, खलीफा है मेरा खलीफा। तू कहता है शायद कोई नहीं, और वो बायजीद है और तू शायद कोई नहीं इब्लीस। ये बेटा बिल्कुल अल्लाह खुल रहा है सारा कुछ इसका। उसने भी क्या कहा, अना खैरुम, या अल्लाह आदम को सजदा, ये तो शायद कोई नहीं, अल्लाह मुझे
ये तो अना खैर हूं, मैं बेहतर। ये भी क्या कह रहा है, भाभी थे बच के बेटा, बड़ा अल्लाह का फजल, बड़ा अल्लाह का करम और फख्र है पुत्र हम बाबों के मानने में, फख्र है। ये बता रहा है और आस्ता आस्ता देखो ये खुलता जाएगा, ये खुलता है। वो पीछे वो किबला मराड़ियाँ शरीफ से पीर अफजल साहब ने ना वो ऐलान किया कि जो इसको मारेगा मैं उसको इतना, मतलब मैं बड़ी दुआ की थी अल्लाह इनको मारना छड़े, ये मरने से पहले पहले इल्मी मौत मरे, ये हमारे उलमा के हाथों से इल्मी मौत मरे, ताकि हमारे बच्चे जो इसने बकवास शुरू कर रखी इसकी बकवास को कहीं सही ना समझ ले। शैतान ने पुत्र क्या, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, फक्का, बल्कि फक्का नहीं आगे जाने फक्कू, मिसबाही का फक्कू, मिसबाही का फक्कू है। लेकिन गल फिर तो ये वो बैठा अपने कमरे में है, उन्हें भी अगू उनको नवी शी छड़ छड़नी है, वो कभी सामने बह के चढ़े और दसी है ना सी इधर अपना कमरा है। लेकिन चलो जी इंजीनियर साहब फक्कू, ठीक है जी। उसने शैतान ने क्या कहा, बाबे थे बाबा बाबा आदम थे, कुरान है भाई, अना खैरुन मिन, मैं बेहतर हूं, अना खैरुन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। और यही हो कह रहे बेटा, बाबे थे लेकिन कुर्बान जाऊं मैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल क्या कहते हैं बाबुओं के लिए, कहते हैं शमाए कुश्ता को जला सकती है मौजे नफ्सिन की, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। मौलाना रूमी यक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतर सद साला ताअते बेरया। इकबाल कहता है शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नूर, फकरे जुनैदो बा यजीद तेरा जमाले बेनका। इसी पुत्र फितनों का दौर है, बचा के अपने बुजुर्गों से लगे रहो, अपने बुजुर्गों से। पुत्र मैं पीछे भी कह के खुदा दा वास्ता जे पुत्र मिज़ार पे जाके कोई इस तरह की हरकत ना करो कि मसलक पे उंगली उठे। बेटा मेरा मसलक इतना वाज़े मसलक है कि मेरे आला हजरत तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि जितनी देर तक मिज़ार पे पड़ी हुई चादर बोसीदा ना हो जाए नई चादर ना चढ़ाओ। वाज़े मसलक मेरा, सजदा तो दूर, मेरे आला हजरत ने तो हाथ लगाने की भी इजाजत नहीं दी। मेरे पुत्र खुदा के बंदो रजा वाले हो, काम भी रजा वाले करो यार। और कोई बेटा इस तरह का काम ना, अपने जो हम बुजुर्गों के आरास मनाते हैं सोने सुथरे करो शरीयत के मुताबिक। और मैं हजरत बैठे हैं, मैं आपको दावत दूंगा, इस साल तो गुजर गया, अगर अगले साल आपने उर्स देखना हो तो गुजरावाला जाके नब्बाज़ मिल्लत का देख लेना। खाए हाँ को उंगली पुत्र, करें हाँ दरा को उंगली, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की उंगली करने को, कोई गैर शरीयत, कोई ठेला मेला सर्कस कुछ भी नहीं। और मैं कहूंगा सुनियो पुत्र होश में आओ, बंद करवाओ ये जो बाबों के मिज़ारों पे ये तमाशे लगे पड़े हैं, क्यों लग रहे हैं? अल्लाह के बंदो वो ये पैगाम लेके आए थे यहाँ, ये करना हमारे नाम पे बिल्कुल हजरत, कहीं निकाल के दिखाओ कशुर महजूब ने दाता साहब ने कहा हो कि ये करना, बंद करो पुत्र। कर मैं और आप रहे हैं नुकसान मसलक का, क्लिप चढ़े हुए हैं, दिखा के कह रहे हैं देखो जी कोई ऐसा का काम नहीं, जिस काम से उन्होंने रोका है करो ही ना। मेरा पुत्र मैं आपको क्या बताऊं कि जब आप इस तरह का काम करते हो या करके जाते हो साहब मिज़ार को तकलीफ कितनी होती है। मैं कुछ बातें इस तरह की है कि बाद में जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मैंने कितने जो साहबे कश बुजुर्ग हैं, कितने साहबे जो कशुल कबूल रखने वाले बुजुर्ग हैं, मैंने कईयों से सुना है कहीं मिज़ार इस तरह किया कि साहबे मिज़ार ही नहीं अंदर आए कोई हैं जी। कई बुजुर्गों से सुनने में आया है कि मिज़ार में साहबे मिज़ार ही कोई, जो मिज़ार पे खुराफात हो रही खाली तेरी है भैया, ये पैगाम तो नहीं लेके। अब देखो ना, मैं फिर अब नौजवानों से आने लगा, पुत्र किसी ने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरब भी नहीं पढ़ी, शाह भी नहीं पढ़ी, और ना पढ़ने पे उसको शर्मिंदगी भी कोई नहीं।
تو تو داتا صاحب جائیں گے تو داتا صاحب خوش ہوں گے تیرے تو بھائی کپڑے کا چھوڑ کے میں کہتا ہوں سونے کا گلاف بنا کے لے جا داتا صاحب کے مزار پہ چڑھانے کے لیے. اگر تیرے نامہ اعمال میں فجر نہیں, اگر تیرے نامہ اعمال میں زور نہیں, اگر تو نے اس دن عصر نہیں پڑھی, مغرب نہیں پڑھی, عشاء نہیں پڑھی, تیری دیکھ داتا صاحب کو کوئی خوشی نہیں دے گی, تیرے پھول داتا صاحب کو کوئی خوشی نہیں دیں گے, تیرا غلاف داتا صاحب کو کوئی خوشی نہیں دے گا. داتا صاحب کو خوشی تب ہے جب تو 5 پوری کر کے جائے گا. داتا صاحب کو خوشی تب بھائی وہ ادھر یہ پیغام لے کے, وہ تو یہی پیغام لے کے آئے تھے فجر, وہ یہی پیغام لے کے آئے تھے ظہر. اب میلہ بھی ہو, ٹھیلا بھی ہو, چاول بھی ہو, پھول بھی ہو, ہار بھی ہو, غلاف بھی ہو, ڈھول بھی ہو, دھمال بھی ہو, نہ قرآن ہو, نہ نماز ہو, نہ تقوی ہو. بلکہ حضرت میں پیچھے بھی اللہ یہ باتیں خطرناک ہیں بڑی زیادہ, لیکن بھائی ٹھیک ہے ماری چھڑے گا نا وہ تو مار مجھے نہیں جانا ہے, لیکن جو اتھے پھنس گئے. میں تو اس دن پیچھے بھی بچوں کو بتا کے آیا ہوں, گل ذرا میں کان چ دساں گا غصہ نہ کر جائے کوئی. میری برادری جی گجر برادری, آپ کو پتہ ہے یہ گجروں کی ایک عقیدت ہے کہ ہم جب عرس شریف ہوتا ہے نا, ہم ایک قطرہ گھر میں دودھ کا نہیں رکھتے ہیں, ہم سارے کا سارا داتا صاحب لا کے. میں اس دن بھی گیا, بڑے ایک میرے محسن ہیں تو مجھے بتا رہے تھے جی اتنے 100 سال سے ہمارا یہ, تو میں نے بڑا ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا تم میری گل دا غصہ نہ کریو, ٹھیک ہے آپ داتا صاحب خالص لے کے جاتے ہیں, اللہ آپ کو برکت دے, لیکن داتا صاحب ادھر یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ مینوں خالص نہیں پیانا, انہوں نے خالص پیانا. میں نے کہا حضرت یہ انہاں دا کی قسم, داتا صاحب خالص تے انہوں کیمیکل, داتا صاحب خالص تے ادھر پاؤڈر, میں یہ کیا ہوا حضرت. داتا صاحب تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ ان کو دیکھو نا سب ہم اپنے چسکے پورے کر رہے ہیں, ان کی تعلیمات کدھر ہیں؟ انہوں نے یہ کہا تھا, کدھر ہے ان کی تعلیمات, کدھر ہے ان کا پیغام؟ بتاؤ نا میرے بچے, وہ جو پیغام لے کے آئے کدھر ہے؟ تو جنہ مرضی لے جا, پھول لے جا, دیگاں لے جا, لیکن پتر داتا صاحب نے خوش اس دن ہونا جس دن تو 5 نمازاں دے نال جائیں گا. ہاں بیٹا یہ اتنے حساس معاملے ہیں, یہ کسی کے پاس ٹھیپا ہے, ٹھیپا کسی کے پاس 2 روپے کا 5 روپے کا, کسی کے پاس ٹھیپا کسی کے پاس ہو تو لو مفتی صاحب نے عطا فرمایا. یہ دیکھیں جی یہ اوپر نا یہ مسجد بادشاہی مسجد نقش ہے, لکھا جو درہم اور دینار تھے نا ان پہ بھی اسی طرح نقش ہوتے تھے. حضرت فضیل بن نیاس کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا نا وہ درہم تول رہا تھا یا دینار کسی کو دینے کے لیے, تو وہ کیا تھا جو اوپر سے نقش تھا نا اس میں مٹی لگی ہوئی تھی. اب ہونا کیا تھا, اگر وہ مٹی صاف نہ کرتا تو مٹی بھی درہم یا دینار کے وزن میں تلنی تھی, مٹی بھی درہم اور دینار کے وزن میں تلنی تھی. مٹی کی قیمت درہم یا دینار سونے, اور وہ بچہ کیا کر رہا تھا, وہ حضرت ہر درہم کو ترازو میں رکھنے سے پہلے نا صاف کر رہا تھا, وہ دھو رہا تھا کہ مٹی درہم کے وزن میں. حضرت فضیل بن نیاز دیکھ رہے تھے, آپ نے خوش ہو کے فرمایا میرے پترا یہ جو تو اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے کہ مٹی درہم یا دینار کے وزن میں نہ تلے, تیرا یہ عمل اللہ کے نزدیک 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے. 2 حج اور 2 عمروں سے. لیکن میں دکھ سے بتانے لگا ساڈا کی سب برفی 1200 روپے کلو برفی, تیرا تھلے والا ڈبا ہے ہو کیا رہا ہے, دکانوں پہ ڈبا بھی برفی کے وزن میں تول رہا ہے کسی کو خیال ہے کسی کو خیال؟ اخروٹ کا حلوہ 2600 روپے کلو, 2600 روپے کلو, اور نیچے جو ڈبا ہے وہ بھی 2600 روپے. فرمایا میرا بیٹا صرف یہ اس کے اوپر سے, کیونکہ مٹی کی وہ قیمت نہیں جو درہم اور دینار کی ہے, اگر تو صاف نہیں کرتا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. مٹی نے بھی درہم اور دینار کے وزن, یہ تیرا عمل 2 حج اور 2 عمروں سے, لیکن ساڈا کو دھیان ہے. لیکن مفتی صاحب میں ایک اللہ دا ولی ویکھیا, میں کوئی پھر انہوں ویکھن گیا, پتہ لگا
हज़रत फौत हो गए। हम गए हज़रत जी वो नारोवाल ना तकरीर करने, बॉर्डर एरिया ना बिल्कुल, आपको पता उधर बिल्कुल बॉर्डर ऊपर है। वो लोकेशन शोकेशन नहीं चलती कोई, नंबर ओखा सोखा से चल गया। जहाँ गए थे हमने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी फलां जगह आप खड़े हो जाएं, हम वहाँ पहुँचते हैं। और सर्दी भी हज़रत जी बड़ी थी, और पता है हज़रत जी सर्दी च तुसीं एक होर काम की करते हो, खुदा दा वास्ता जे को अल्लाह लोग डरिया करो। मोती साहब तू ठंड बड़ी, वो तू सानू ठंडे दे गिले यार पा छड़ दे। एक बारी ते हुंदा सही ओ मैं हैरान हुआ बंदे ने यार, वो इतनी ठंड है हारा च पानी चोण दे सानू पा छड़ दे। वो तू मोती साहब ठंड है नहीं, चुप करके ना बैठ रही। फिर कहते नहीं मिसबाई साहब गुस्से में आ गए। हमें कहते हैं गुस्सा ना करो, आप गुस्सा करो, चुप करके ना ठंडे जंग ला रहे जी पा रही ने। लेकिन एक बारी जान निकलती है सही है, ओते भी साडे नाल इंज ही होया। प्यार हर बंदे ने ठंडा ते गिला ही हार पाया। मैं तकरीर करके मैं मेरी धौन च पे पीड़ हुई यार, मैं हैरान होता हूँ लोगों के साथ ही कोई मत मारी गई सबकी यार। वो अकल मत पाओ, सर्दी इतनी ज्यादा, ठंडे गिले हार पाड़ दे। असल भाई जी गल तुहानू पे होना कि नहीं पे पे हुण पक्की गल तां संडे ने नहीं सारे नाल ही हुंदा इंज। मैं हैरान हूँ, एडी ठंड यार, जान कर चढ़ी पड़ गई उन्हें मेरी। वो तू नारोवाल हज़रत, मैं चुप करके तकरीर की थी। मैं क्या बाहर जाके कोई चाह पीने कितने, वो शायद मुझे मेरे सब्र का इनाम मिल गया कि अल्लाह पाक ने मुझे एक वली से मिला दिया। हम ना उधर रुके, चाय का छोटा सा सड़क पे खोखा टाइप बना हुआ था। वो चाय पी के ना मैंने कहा देख के मैंने कहा चाय पीनी है। हम गाड़ी से उतरे, 3 या 4 जितने बंदे थे, हमने कहा भाई बाबा जी चाय बनाओ। वो अंदर ना बर्फ़ी भी पड़ी हुई थी, तो बर्फ़ी देख के दिल थोड़ा मचला। मैंने कहा चल यार, लेकिन अब ख्याल नहीं था कि बर्फ़ी क्वालिटी टेस्ट क्या हो। मैंने इसलिए उनसे कहा कि हज़रत पा या नहीं कि मैं कही मैंने सही नहीं याद कोई अब वली वो कैसा था रात का। अब क्योंकि हज़रत ये वाला में तरकड़ी नहीं जड़ियाँ हमने इलेक्ट पुरानियाँ जिसके दरमियान में किल्ली होती थी हज़रत। अब ज़ाहिर है जी इस पलड़े में बर्फ़ी रखी जानी थी और इस साइड पे बट्टे या बांट जिनको कहते हैं। उसने क्या किया, ज़ाहिर है जी बर्फ़ी खाने वाली चीज़ थी और वो तराजू साफ़ नहीं था, और बर्फ़ी होती भी इस तरह की चीज़ है कि थोड़ी सी मट्टी हो तो उसके साथ लग, इसलिए उसने क्या किया, उसने उस साइड पे ना कागज़ रखा, बिल्कुल छोटा सा ना इस तरह का एक पीस था लेकिन उसका रंग और था, उसके ऊपर उसने बर्फ़ी रखी। अब ज़ाहिर कागज़ भी बर्फ़ी के वज़न में तुलने लगा था, लेकिन वो ऐसा अल्लाह का वली था, उसने उस साइड पे भी कागज़ रख के उसके ऊपर बट्टे रखे। मैं देख रहा था, मैं देख रहा था, है मैं देख रहा था। मैंने कहा यार ए जे मैं जिनी देर पे मैं प्यार ना देखता है, मैं जी वली कितना तकवा है अल्लाह, बिल्कुल इतना ही कागज होगा था वो खाकी का, इतना तकवा। उसने कहा बर्फी की कीमत है 1200 रुपए किलो, ये आया होगा 10-15 रुपए किलो। अब 10-15 रुपए वाला भी 1200 में तुलेगा। उसने क्या किया, इस साइड पे कागज रखा तो उस साइड पे भी पुत्र एंड करके जाओगे तो दाता साहब खुश हो। ए दाता साहब का पैगाम, ये दाता साहब का पैगाम, ये दाता साहब एंड करके जाओगे नहीं तो जाओ जिन्नी मर्जी देगा लै जाओ ना की लगी। बेनियाज लोग वो बेनियाज भूखते नहीं, वो तख्ते सिकंदरी पे बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी, ये करके पुत्र मैं ये ना को समझो कि मैं इन पे तनकीद करने लगा। ये अल्लाह की कसम है, मुफ्ती आरिफ साहब, किबला मुफ्ती काशिफ साहब हैं, असद भाई हैं, जितना ये तुहानू पता मैनू खुशामा मैं ऐसे ही रखियां ने कि भाई किसी दी करी ना उन्हें माना उन्हें जाना, बस बाकी नहीं साढ़े को होंगी ना खुदा वक्त ले आए कदी। ये पुत्र ये 10 दिन तुम्हारे लिए बड़ा खूबसूरत एक रूहानी जो है ना दस्तरखान लगाते हैं। लेकिन पुत्र अभी आगे तुम्हारा काम है ना कि तुम, इन्होंने तो बुला लिया हज़रत, कितने कितने सोहने नाम आएंगे तुम्हें, कितनी कितनी सोहनी बातें, अब तुम्हारा भी तो काम है ना तुम। लेकिन पुत्र मैं दुख से हज़रत साहब कहने लगा 70-75 साल से ऊपर हो गए मेरे पाकिस्तान को, लेकिन पुत्र साडा हाल आज भी है जे कि बाहर जो हमाम पड़ा है ना गर्मी में लोगों के पीने के लिए जिसमें पानी रखा है, हम आज तक उससे संगल नहीं उतरवा सके। हमारी ये हालत है, हमारी ये हालत, हम आज तक उससे संगल। सबसे हज़रती खूबसूरत तरीन जो जगह है वो क्यों कौन सी है, मस्जिद। अच्छा एक गल दसो हमें, ईद ते सारे ने नवी जुत्ती लई सी, बोलो तो सही,
तकरीबन नहीं सन सारे नई जूती ली थी ना तो ईद पढ़न केड़ी नवी पा के आया थी कोई भी वही मैं आप यहाँ पा के आया क्योंकि मैनू कई बार पैदल जाना पिया मैं सच बता क्योंकि लिखा तो नहीं ना कि मिसबाई साहब की जूती है माफ कर दे मैं नहीं था पहन के आया इस दफा और जो बेचारे पहन के भी आए थे ना अद्धा ध्यान नमाज हालती अद्धा जूती मैंने बात गलत तो नहीं की पुत्र ये हमारा हाल है ये हमारा क्या हजरत इन प्रोग्रामों को सिया फायदा उठा रहे हैं मैं इधर नहीं कर रहा क्यों करन दे फायदा तो होता भाई वो कर रहे हैं आप इनका शुक्रिया अदा करो कर रहे हैं मैं आपसे और खुद से मुखातिब हूँ हर साल मुफ्ती साहब किबला मुफ्ती काशिफ साहब मुफ्ती आरिफ सत्तार साहब असद भाई जितना इनकी माशाल्लाह खुद सोनी बदन सजाते हैं क्या सीख रहे हो इससे क्यों आज तक हम क्लास से संगली नहीं करवाते हजरत मैं इस तरह की बातें करते हैं ना फिर नीचे कमेंट मैं तो वैसे पढ़ता नहीं क्योंकि बंदा बड़ा मायूस हो जाता है पता फिर मौलवी उथे टुर जा मैं साहब बाहर गया वो देखियो फर्क असी किथे खलो हम मुफ्ती साहब ट्रैवल कर रहे थे एक जगह ना जा रहे थे रास्ते में ना जिस तरह आपका माशाल्लाह ये टेबल है इससे थोड़ा बहुत जरा बड़ा और लंबा हो गया उन्हें बोतलें पड़ी थी हजरत उस पर ना एक भी देखा हम गुजर गए दूसरा भी देखा गुजर गए तीसरा भी देखा थोड़ी देर बाद ना स्टॉल आए पता कोई नहीं मैं बड़ा भाई किस चीज़ के स्टॉल लगे हैं मैंने बच्चों को कहा यार की उन्होंने कहा जी ए साइड ते असी भी पहली बारी तुहाडे नाल प्रोग्राम करना है सानू नहीं पता मैंने कहा रोको जी देखिए कि हम उतरे तो हजरत शहद पड़ा था किलो का डब्बा 4 आधा किलो का 4 और पाइया था ठीक है जी बंदा कोई नहीं हर डिब्बे के ऊपर लिखा था जी ये इसके न्यूट्रिशन है ये शायद इस इलाके से इकट्ठा किया गया वहाँ इन फूलों की ज्यादती है वहाँ ये है सब पे लिखा बंदा कोई नहीं पता क्या लिखा हुआ था ये अकाउंट नंबर है आप तीनों में से जो मर्जी लें मेरे पैसे मेरे अकाउंट नंबर में सेंड कर दीजिए पुत्र 4 जुमे उनके पास नहीं है आपके पास है ये 10 प्रोग्राम उनके पास नहीं है आपके पास है आगे 12 रबीउल अव्वल शरीफ आने वाली है 12 दिन तरबियत की ये नशिस्त आपको मुयस्सर आएगी कोई तकरीर नहीं सुनते 10वां कोई तकरीर नहीं 40वां कोई तकरीर नहीं कोई ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस नहीं कोई योम सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस नहीं कोई योम फारूक आजम कॉन्फ्रेंस नहीं कोई मौला मुर्तजा मौला मुश्किल कुशा कॉन्फ्रेंस लेकिन हाल क्या है कोई बंदा नहीं शायद पड़ा हुआ है लिखा हुआ है ये अकाउंट नंबर है जो भी उठाए इस अकाउंट नंबर पे पैसे सेंड कर देना लेकिन तेरा और मेरा ये हाल है कि वो पानी का ग्लास वो हमाम वो कूलर जो सड़कों पे रखा गया है मुसाफिरों के पानी पीने के लिए तूने और मैंने उसको संगली लगा के रखा क्यों पुत्र है नहीं पूछे दसों आपस से बैठे थे खुद दसो सही यार उनके पास कुछ नहीं है मेरे पुत्र कुरान नहीं है कुछ नहीं है उनके पास बुखारी नहीं मुस्लिम नहीं तिरमिज़ी नहीं निसाई नहीं अबू दाऊद नहीं इहयाउल उलूम नहीं मुकाशिफतुल कुलूब नहीं कीमिया सआदत नहीं मकतूबात इमाम रब्बानी नहीं फतावा रज़विया शरीफ नहीं अमीर आले सुन्नत नहीं पीर अजमल नहीं आसफ जलाली नहीं नब्बाज़ मिल्लत नहीं कीम खादिम अली नहीं कीम अब्दुल हई नहीं पीर जमात अली शाह नहीं पीर मेर अली शाह नहीं गौसे आजम नहीं जुनैद नहीं बायजीद नहीं अबू बकर नहीं उमर नहीं उस्मान नहीं सैयदा कायनात नहीं पंजतन पाक नहीं वो फेर भी होते तू फेर भी है क्यों हजरत वजह पुत्र है क्या वजह हुई फिर इतने पुत्र इकबाल रो के कहता है हाय हाय ये जिक्र नीम शबी ये मुराकबे ये सुरूर अगर तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो इसलिए पुत्र इन्ना साहिबान ने बड़ी सोहनी पुत्र आपके लिए बदन पुत्र और मेरे बच्चों चस्का ला के न टुर जाइयो खुदा दा वास्ता अमल करो यार पुत्र बहुत पीछे रह गया मैं हैरान हुआ आप नौजवानों उस दिन को मोदी ने बात की मर जाना चाहिए था सारे पाकिस्तान नौजवानों को पता उसने क्या कहा उसने कहा पाकिस्तान से तो हमारा मुकाबला ही नहीं इनका हमारा क्या लेवल है कहा जब बाहर गया तकरीर करने उसने कहा इनसे तो हमारा मुकाबला मरनी के सारे कर लेकिन
मुझे क्या लगे, तुम तो सारे लगे हुए लाहौर दा पावा ते अख्तर लावा। ये कौम का मुझे हजरत जी हाथ जोड़ के अख्तर साहब कान फाड़ के, कोई आपकी इंसल्ट नहीं, कोई मैं आपसे कोई दुश्मनी नहीं लेने लगा, आप जो लगे हो ठीक है, मैं इनसे मुखातिब हूं, मुझे कोई शौक नहीं उससे लड़ाई लेने का, मैं आपके आगे रो रहा हूं। आपका मयार हजरत जी शादू वेला है, आपका मयार एक ठुमका लगाने वाली है, आपका मयार अब ये नचनइये है, ये गवैये है, और कोई मार नहीं गया गैरत से। जब मोदी ने कहा पाकिस्तान से तो हमारा मुकाबला ही नहीं बनता, किसी की रात की नींदें नहीं हराम हुई, किसी को गैरत नहीं आई, लेकिन क्या है सारी कौम लगी हुई है। एक तमाशा जाता है, दूसरा तमाशा आ जाता है, दूसरा जाता है तमीशा, तीसरा तमाशा आ जाता है। और भाई तेरा आइडियल वेला वूला लावा लूवा नहीं, तेरा आइडियल सलाहुद्दीन अय्यूबी है, तेरा आइडियल इल्मुद्दीन है, तेरा आइडियल इल्मुद्दीन है। एक दफा चल के तो देख इल्मुद्दीन के रास्ते पे, और लिखा सुना पुत्र बुजुर्गों से, वो इतना नवाजते हैं कि जब जज ने सुनाई ना सदाए मौत, और क्या होता है निब तोड़ छड़ी हजरतों ने, इथे तो जोर ला लिया नहीं लगा। अब जितने अहले दिल थे, मुफ्ती आरफ साहब जैसे ये दर्द रखने वाले लोगों ने कहा साढ़े होंगे इल्मुद्दीन फांसी चढ़ जाए, की मुंह बखाना कल जाके, थले तो जोर ला लिया नहीं चले, हम उत्ते जोर लाई है। सारे बुजुर्ग आपस में सर जोड़ के बैठे और कहा हम ही लोगों को कहते हैं जो बेगुनाह कह दो वो सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू करे रोज़ाना, खुद नहीं कर सकता किसी से करवाए, किसी से सुने, तीनों में से जो काम करे, करने वाला अगर किसी से करवानी है तो मुत्तकी हो, अल्लाह सूरह यूसुफ की तिलावत की बरकत से रिहाई का एहतमाम कर देंगे। ये बात आपस में। अब दूसरा ख्याल ये आया भाई इल्मुद्दीन हैं बड़े सादे, इल्मुद्दीन है बड़े सादे, अब पता नहीं नाजरा पढ़े हैं नहीं पढ़े, पढ़े हैं तो मारूफ पढ़े हैं, मजहूर पढ़े हैं, कारी साहब से पढ़े हैं, हाफिज साहब से पढ़े हैं, औरत से पढ़े हैं, मखारज ठीक है, तरतील ठीक है नहीं ठीक, चलो इस तरह करते हैं कि ये ब्यूटी हम ले लेते हैं। रोज़ाना जाके ना इल्मुद्दीन को जनाब सूरह यूसुफ सुनाई जाए, इजाज़त मिल गई, सारे बुजुर्ग गए जिनमें हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह भी थे, और लिखा जितने बुजुर्ग गए उनमें हाफिज कुरान भी सिर्फ हुजूर अमीर मिल्लत ही थे। जितनी बातें बाहर हुई ना उतनी बातें उनसे भी हुई। इल्मुद्दीन ने आगे से कहा हजरत इस नालों सोहनी गल केड़ी है, सैयद कुरान पाक पढ़े और इल्मुद्दीन सुने, तुम पढ़ो मैं सुनाऊंगा। अब जनाब शाह साहब जनाब वो तिलावत शुरू कर दी आपने, अब तिलावत कर रहे हैं, किबला हजरत भी हाफिज हैं, किबला मुफ्ती साहब सारे हजरत जी बड़ा टैटम टैट हाफिज भी हुए ना, बस तवज्जो हटने की देर है, साथ ही मुशाबा लग जाता है। तो ज़ाहिर है कैफियत थी, सामने वो बैठा है जो नमूसे रिसालत पे कुर्बान होने जा रहा है। मैं वो हर ईद पे ना ये शोशे छोड़ते हैं, इस ईद पे भी शोशा छोड़ा मैं, वो जी देखो जी कुर्बानी जो करनी है वैसे पैसे किसी ने दे दे उन्हें तकलीफ होती है, मैं क्या या उसको तकलीफ नहीं, तकलीफ तुझे कहीं होती है। और मैं सच कह रहा हूँ पुत्र, ये जो बकवास करते हैं ना तकलीफ होती है। अगर कभी उस ज़बीहे को जुबान दे दी जाए जिसके लिए तू कह रहा है कि जी वो छुरी देखो फेर दे, तो खुदा की कसम है तेनू टक्कर कट मारे और कह बकवास ना कर रहे, तकलीफ तुझे हो रही है। अरे मुझे तो इतना मजा आ रहा है जान देते हुए, तुझे नहीं पता छुरी किसके नाम की चल रही है और तकलीफ तुझे है। वो तो ज़बीहा बोल नहीं सकता आगे से, नहीं तो तुम्हें बताता कि कितना मजा आ रहा है उसके नाम की छुरी चलने का। तू तकलीफ कह रहा है, अरे कभी मेरा बस चलता, मेरे पास 1000 गर्दनें होती, मैं एक एक करके उसके नाम पे कटवाता है। सामने वो बैठा है तो उनके नाम पे सूली चढ़ने जा रहा है। इल्मुद्दीन वो कैफियत बनी थी। वो बुजुर्ग बताते हैं जी उसी कैफियत में ना किबला शाह साहब या ज़ेर को ज़बर या ज़बर को ज़ेर पड़ गए। इल्मुद्दीन हाथ जोड़ के अर्ज़ करते हैं हज़रत वली भी हो सैयद भी हो लेकिन कलाम रब्ता पढ़ रहे, ज़ेर ज़बर ना मतलब बदल जाता है। कोई और बात होती तो मैंने चुप रहना था, अल्लाह का कलाम ज़ेर ज़बर से मतलब चेंज हो जाए। ज़रा तवज्जो करें, आप ज़बर को ज़ेर या ज़ेर को ज़बर पढ़ गए, आप हैरान हो गए। हम तो ये सोच के आए थे पता नहीं नादरा ही आता कि नहीं आता, कोई हाफिज़ कुरान की गलती कट रहे। जब तवज्जो फरमाई तो गलती भी ठीक। हैरान होकर पूछती हूँ इल्मुद्दीन तू कितों पढ़े है? इल्मुद्दीन तू कितों पढ़े है? इल्मुद्दीन आगे से कहने लगे शाह जी आपने तो फट
पट्टियों पर बैठकर उस्तादों से पढ़ा है, इल्मुद्दीन को पढ़ा भी वो गए हैं जिनके नाम पे कुर्बान होने जा रहे हैं। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, बुलंद आवाज से ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, उलमाए हक अहले सुन्नह। जिनके नाम पे कुर्बान होने की पुत्र करो तो सही कुछ मेरे बच्चों, खुदा दा वास्ता जी होश करो यार, कहाँ पाकिस्तान आ गए। और मैं अक्सर कहा करता हूँ पुत्र किसी का कोई कसूर नहीं, कसूर तेरा है, कसूर साडा है। ये देखो ना कितने होंगे लूटने वाले, जिन्होंने लूटा चंद हजार ही होंगे ना, और पुत्र हम करोड़ों में हैं, हमने पास बैठ के लुटवाया। इसलिए पुत्र योम फारूक आज़म है, योम हसनैन करीमैन है। आज पुत्र कुछ उठ के जाओ, तू तैया करके जाओ कि 5 वक्त दियां पूरियां पढ़नियां ने। हाथ खलार के जी जरा ऐ वेख लियो, पक्का जी, पक्का जी, हाँ ठीक। और दूसरा पुत्र एक तैया, आज के बाद हमने किसी अच्छे हाफिज साहब कारी साहब से नाजरा शुरू करना है जी। हाँ पक्का पुत्र कम करो कोई ए फजूल हजरत ये जिक्र नीम शबी ये मुराकबे, अगर तेरी खुदी के निगहबान, मेहनत करो पुत्र। और मैं आखिरी बात करके मैं गुफ्तगू फिर इंशाल्लाह, क्योंकि सुबह जुमा भी है, फिर इंशाल्लाह जी आपको जी मुबारकबाद, नजर बद तो बचाए, अल्लाह ताला साथ सलाम, अल्लाह ताला हासदां को शरीरां को शैतानां और जिहड़ी तुसीं इन्हां बच्चियां वास्ते सजांदे हो ये सजदी रहे। ये लिखा है जी हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद, मेरा इश्क भी तू मेरा यार। पढ़ना आसान है, बल्कि ये मिलता तो किसी किसी को है ना जड़ा कवे। और मैं पुत्र मैं जो कहता हूँ ना दावा करना बड़ा, मुफ्ती साहब मेरे उस्ताद जिनसे मैंने मैट्रिक तक पढ़ा, मौलाना असलम अंसारी, क्योंकि जितनी देर वो जिंदा थे मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया, विसाल हो गया उनका तो मर जाना। वो मुझे फरमाते हैं कि मैं लाहौर ना को कोर्स कर रहा था, तो बुध को ना दाता हुजूर कवाली महफिल समा होती थी, कहते मैं भी उसमें शरीक। वो कुछ इस तरह की कैफियत बनी कि मैं वो मज़ार शरीफ पे गया और मैंने जाके वहाँ कहा या अल्लाह कुछ नहीं चाहिए, कोई हूर नहीं चाहिए, कोई माल नहीं, सिर्फ तू, सौखा काम तो नहीं ना। कहते मैं मज़ार से बाहर निकला, तो जैसे दाता साहब से बाहर निकले तो आगे 2 सैन में, आपको पता है अल्लाह माफ़ करे, एक सैन में ना कहते हैं शो ख़त्म हुआ था, और वो कुछ औरतें भी फिल्म देख के ना बाहर निकल रही, कहते एक औरत के चेहरे पे मेरी नज़र पड़ गई, उन्हें इतनी सोहनी लगी, मेरा दिल किया मैं फिर पीछे जाऊँ। कहते जैसे कदम उठाया तो कान में आवाज़ आई, असलम वो अगे तो हो ना छड्डन दे आंदा एक ही है, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी। बच्चियां नहीं खेड़े, बच्चों की खेल है। तेरा किस तरह इश्क हो गया, तेरे को 4 वाल नहीं उन्होंने नाम दे रखे गए, तेरा किस तरह इश्क हो गया, किस तरह तेरा इश्क हो गया। झूठ बोल नहीं, तेन शर्म नहीं आती, पग तू छड़ छड़ी। मैं चलो मैं मुफ्ती साहब किसी निकाह असद भाई मुफ्ती साहब पढ़ाने जावा ना, तो आजकल आपको पता है कि वो रिवाज आया कि हमारे दूल्हे अब ना वो कुल्ला पहनते हैं। चलो आए तो सही अपने तरीके से जिस तरह भी आए हैं जी, वो शेरवानी और वो कुल्ला पा के ना बैठा होंगे जनाब। तो मैं निकाह पढ़ा के ना कान में कह देता, मैं कहता भाई दूल्हे तेरे ते हूँ एक पर्चा कट के दे। वो बेचारे अक्सर दूल्हे घबरा जाते हैं, हजरत मैं तो कुछ भी नहीं किया। मैं कहना इत्थे नहीं कटाया, अगे कटाया गया, अगे कटाया। वो कहता है हजरत वो किस तरह, मैं आज कुल्ला बने ही ना, पग बनी है ना सिर, हाँ बनी है। मैं कोई आईने पाकिस्तान में कोई नई शिक तो नहीं आई जो कुल्ला बांध के नहीं आएगा दुल्हन नहीं भेजी जाएगी, नहीं ना। कोई निकाह के वाजिबात में से हो, कोई निकाह की कोई सुन्नतों में से हो कि नहीं। मैं फिर तेरे ते केस होना होया है कि कल तेनू जड़ा ना तेरे रब ने पूछना है, बंदिया दस हाँ वोटी लैन गया है तो कुल्ला बन लिया सी, साढ़े सोहने लिए तो कभी बनिया नहीं है। मैं नौजवानों से हुक्म क्या, सारा नामा माल चेक करो, जब ये 13 साल 12-14 का हो गया चेक करो,
सारे जुमे देखो इसके, बांधा कभी नहीं जी। 12 रबीउल अव्वल चेक करो, हो सकता किसी महफिल में बांध गया हो। शबे बारात देखो, शबे बारात देखो, सतीवी देखो, वो ईदा देख लो, वो किसी दिन भी नहीं साढ़े यार वोटी लैंड गया तो कूला बढ़ गया। तो लिखा जा रहा है किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार। चेक करो सारा कुछ, और किसी दिन बांधा हो मैं तेरे ते पर्चा कटेगी वोटी लई। लेकिन जदू और मैं जितने पुत्र बैठे हैं मुझे कोई आपसे नहीं, मैं सब मिल जाता मुझे। है पुत्र क्यों छड़ छड़े जी बताओ मुझे हजरत जी। और मुफ्ती साहब पता नहीं मस्जिद है बात करनी ठीक है कि नहीं, लेकिन मैं कर दुख से मैं कह रहा हूं सिख अपनी फिल्म में हीरो आ रहे हैं। सिखों ने जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री शुरू की है, हीरो आ रहे हैं, हीरो हीरो। और पग के चलियो उन्होंने अपने बाबे की पग फिल्मां च भी नहीं लाई। तुसी मस्जिदां च नंगे सिर आए सारे की करन की चाहते की यार। मैं फिर मुफ्ती साहब यही कह के बात मुका देता हूँ कि कदर नबी दी जानन वाले विच सौंगे शहर मदीने। ये मैं नौजवानों से पुत्र ये लिखा है दो सहाबा। अब साहब तफसीर ने नाम नहीं लिखे, वो कहते हैं वो कहीं गए तो रास्ते में कोई नदी आ गई, पुल शुल होंगे कोई नहीं सर। वो एक सहाबी गुजर गए, एक उसी किनारे पे किसी सोच में गुम खड़े। वो जो गुजर गए ना, उन्होंने गुजर के देखा बेली, वो देखा तो उन्होंने कहा भाई आ जाओ पानी गहरा नहीं है। वो कहते मुझे भी पता गहरा कोई नहीं। कहते फिर आन नहीं दे। कहते मैं एक दिन नबी अलैहिस्सलाम की नौकरी में ना इस नदी से गुजरा था, सिर्फ खड़ा सोच रहा हूँ उस दिन मेरे महबूब ने पहले कौन सा कदम मुबारक रखा था, मैं भी वही रखूंगा। चले हो क्यों यार, को वजह दे दसो यार। है पुत्र मैं सीधी गल करा पुत्र है जिथे तुसी आए हो ना जिहदे घर ओनू पफ नहीं जे सोहने लगदे, ओनू यार दा रंग सोहना लगदा। और जिहदे घर जाइए रंग भी जड़ा सोहना लगे वो करके जाइए। ओनू पफ ही नहीं सोहने लगदे, तुसी ओनू पफ वांड डे आ गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कर। बात काफी लंबी हो गई, इसलिए पुत्र कर लो मेरे बच्चे। आखिरी बात ख्वाजा गुलाम फरीद और हज़रत साहब कलाम की इब्तिदा भी बड़ी अच्छी है, एंड में सब कुछ होना है। बाबे ने अपनी नफी की थी, अपने आप में छुरी फेरी। क्या कहते हैं, मैं ते कमतर आकर आजिज अदना लाशे ला इम्कान भी तो। वो लिखा है जी ईद का दिन था और लोग ईद की नमाज पढ़ के ना बाहर आ रहे थे और एक दीवाना खड़ा हर एक से पूछ रहा था, साईं ईद कदा, ईद की दुआ। दीवानों की अपनी ईद है, असली दुनियादार ईद कदा। वो सारे उसको आगे से एक ही बात, कहते साईं ते को पता नहीं आज ईद है। लेकिन वो हर आने वाले से फिर पूछता है ईद कदा, ईद कदा, किदू ईद हो। सवाल ही बड़ा अजीब है। ईद का दिन, ईद गाह, ईद की नमाज पढ़ के लोग आ रहे हैं और पूछ क्या रहा है ईद। लिखा है जी सबसे आखिर में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद आए। अब आया था सही जवाब देने वाला। दुनियादार थे, उनको क्या लगे, वो दुनियादार उनको क्या लगे है, उनको क्या पता ईद कहते किसको। ये हजरत राबिया बसरी के लिए लिखा है। रात का वक्त और हजरत राबिया अपने सीन में खड़ी होकर ऊंची ऊंची कह रही थी, हाय प्यास, हाय प्यास। लोगों ने समझा शायद हजरत राबिया को प्यास लगी और पीने को पानी नहीं। सारे अपने अपने बर्तन उठा के कुएं पे भागे पानी लेने के लिए। जब पानी लेके वापस आ रहे थे ना, तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासिनीन में से थे, उन्होंने रोक लिया। फरमाया कितने चले पानी ला। कभी हजरत राबिया ऊंची ऊंची कह रही हैं, हाय प्यास, हाय। रात का वक्त है, औरत ज़ात है, कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए ऊंची ऊंची कह रही हैं शायद को ले, तो हम पानी लेके जा रहे हैं। आप रो पड़े। फरमाया शदाइयो ये उतरे नहीं जड़ी ऐस पानी ना बुझे,
ये उसकी दीद की प्यास है, उसकी दीद से बुझेगी है। अब आया था सही जवाब देने का। उसने हजरत से भी पूछा, क्या साईं ईद कदा, आंखों में आंसू उतर आए, किसी ने दिल का तार छेड़ा था। आपने आगे से फरमाया यार मिले जदा, हाय जब यार मिलेगा फिर उस दिन है वो रो पड़ा है। फिर रो के कहता है साईं यार मिले कदा, यार कैसे मिलेगा, किदू मिलेगा। और फिर जवाब दिया आपने फरमाया एहो नफ्स मरे जदा, साफ करें तारा कस वजूद दे साथ दियां ऐथे एदे नाल लड़। फरमाया एहो नफ्स मरे जदा। फिर सवाल करता है हुजूर एहो नफ्स मरे कदा, हाय हाय। फिर आखिरी जवाब दिया, उसके कंधे पे हाथ रखा, थपकी दी और जवाब देते हुए चले गए। आपने फरमाया यार चाहे जदा, यार कर लो मेरे पुत्र। मैं अपने बुजुर्गों के शेर पे वो जो है ना वो कागज और मुझे आज हजरत ने बाबियां का प्यार होता है, सही बात। और मैं कसीर तादाद में उलमा बैठी है जी पुत्र, इख्तलाफ का कोई हल निकल आता है, बुग्स का कोई हल नहीं निकलता। आज जितनी खराबियां इख्तलाफ की खराबियां नहीं, बुग्स की खराबियां। मैं वैसे मुफ्ती साहब आज तक किसी किताब च नहीं पढ़ी, मेरी पहली बारी स्पीकर से गल सुनी, मेरा दिल कर रहा है। मैंने हजरत की जुबान से सुनी, मैंने किसी किताब में हजरत सुनाते थे, पढ़ी नहीं। वो भाई दूसरे दिन किसी का फोन आ जाता, दसो जी वाला दो है, और मैं जनाब माफ़ी दे छूँ। वो क्या करें भाई, दूसरे दिन फोन आ जाता वाला दो जी, मैं ठीक हो गया। वो मैनू हजरत एक मुफ्ती साहब ना ही एक मुफ्ती साहब ने सिखाया, अल्लाह माफ़ करे। और रोज़ फतावा रज़विया शरीफ दी इबारत जी है ना वो मुछां दे वाले ना भेज देनी। वो एक दिन तंग हो के मैं गड्डी लैके टुर गया। मैं हजरत साहब छत्तर फड़ो जिन्ने मेरे सिर च ना मारने ना मारो, गलत है। अल्लाह पुत्र ये इथों वड्डियां ने, इथों छोटियां ने, बिल्कुल ए वड्डियां होंदी। मैं क्या हजरत जिन्ने छित्र मारने ना मारो मैनू, तो फिर छित्र खान तो एक काम और करना है। उन्होंने क्या हो कि मतलब जी गड्डी मेरी तेल मेरी, ए जाके ना सारे फतवे राणे सुनाओ, उन्होंने भी सुनाने ने। वो जानते हो बंदे हो, रब दे माफी दे छड़ो। मैं हजरत जी इन्ने मैसेज माफी दे कीते ना, हुजूर माफ कर दियो, मैनू माफी दे छड़ो, मेरी गलती है, मैनू माफ कर दियो। मैं जिस तरह दी हुण भाई कौन गुजरां नूं आखे कि खालस दुध लै, मार खानी है ना गुजरां, कौन इन्हां नूं आखे जे पुत्र रखियां ने ते कोई थोड़ा जिहा हक भी दा कर माफी दे छड़ेगा। वो करे हां भाई, कोई गल भी करे हां, लेकिन कोई हथ लाए हां गुजर मैनू गलत है, मैं कदी नहीं थी। वो हजरत जी मैनू जान खा मारी रोज कोई ना, मैं क्या हजरत जी गड्डी मेरी तेल मेरा जांदियां खाना मेरा, ए सारे फतवे ना राणे सुनाओ ना ही जनाब मोड़ मोड़ हो गए। इख्तलाफ नहीं इशू है, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬੁਗਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਬਾਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। मैं अल्लाह मैं खुद इतना शर्मसार हूँ। मैं कराची जाके दूर बैठ के मीरे वाले सुन्नत की ज़ियारत की, मैं नेड़े नहीं गया। उन सारे ने कहा हजरत मैं यार शरीयत ते पहरा दे रहे हैं मेरे वाले, मेरिया कुछ मुछां वड्डियां, मैं शर्म आती जाती। हजरत ने खुद हुक्म फरमाया सैरी साढ़े नाल करो। मुझे मैं खुद इतना मैं हजरत मैंने शर्म आती है। वो शरीयत ते पैदा पहरेदार है बाबा साडा, एक अमल शरीयत, मैंने शर्म मैं नहीं। कराची जाके हजरत ने हुक्म फरमाया, मैं अगे उन्हें क्या हजरत साढ़े नाल खाना करो, बड़ी गल पुत्र, बड़ी उनकी मोहब्बत मेरे से, एडा बड़ा छोड़े नाम हजरत ने फरमाया कि नाश्ता, मैं हजरत मेरी बड़ी मैंने शर्म आती है। बुग्ज़ दा नहीं इलाज को देखो ना, कराची जाके बंदा वो टूटियां तो बह के सिर्फ सोने वेख के उठ के आ जाए, हजरत शर्म है नहीं हजरत मेरी कोई थोड़ियां बड़ियां। बुग्ज़ का इलाज पुत्र, बुग्ज़ कड्डो, इख्तलाफ का इलाज हो जाए।
बुग़्ज़ दा की करिए। ये सुनो बुजुर्ग बाबे बड़े बाबा हजरत फरमाया करते थे किसी मामले में ना इमाम इब्न जोज़ी और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का को आपस में मामला हो गया। वो लिखा जी इब्न जोज़ी बीमार हो गए, मेरे गौसे पाक तीमारदारी के लिए गए हैं। गौसे पाक गौसे पाक तीमारदारी, वो लिखा जब आप गए ना दरवाजे पे दस्तक दी, इब्न जोज़ी ने कहा जी मैं नहीं मिलना। वो मामला था आपस में, वो आपने खादिम से कहा कि जाके इब्न जोज़ी से कहो कि जिस बात पे इख्तलाफ था ना ख़त्म कर दी गई। जब उसने खादिम ने जान कहा ना तो लिखा इमाम इब्न जोज़ी ने अपनी पग खोल के भेजी और साथ अपने खादिम को क्या कहा, इस पग को गौसे पाक के कदमों में बिछा को कि मेरी पग पे पैर रख के आए। इख्तलाफ का इलाज किबला मुफ्ती साहब हो जाता है, बुग़्ज़ का इलाज सारियां खराबियां बुग़्ज़ दी ने। अफसोस मौलवी सुलेमान आप ही बीमार है, इन्हें बेचारियों का की ट्रीटमेंट करना। मैं खुद ही बुग़्ज़ की बीमारी बुग़्ज़, ये जो लोग थे इनमें प्यार था बस। ये मुझे आज हजरत ने ना तहरीर भेजी, वो ज़ाहिर है वो जो हजरत किबला महाना हमारा जो रसाला निकलता है गुजरांवाला से रज़ाए मुस्तफ़ा, वो इब्तिदा में हजरत को भी नुस्खा गया होगा मेरे सैयदी हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला। तो हजरत ने फिर वो नुस्खा देख के ना तो फिर आगे से वो आपने हुजूर नवाज़ मिल्लत के लिए ये अलकाबाद कितना प्यार से यार, क्या यार लोग थे अल्लाह के लिए प्यार एक दूसरे से। अब लिखते क्या हैं, बआली खिदमत फ़ख्र अहनाफ हैं साहिबुल फ़ज़ाइल वल औसाफ एंड सलाम मसनून रज़ाए मुस्तफ़ा का ज़ाहिर दीदा ज़ेब, रसाले की तारीफ हो, रज़ाए मुस्तफ़ा का ज़ाहिर दीदा ज़ेब और बातन दिल अफरोज़ है। प्यार प्यार था। बआली खिदमत फ़ख्र अहनाफ साहिबुल फ़ज़ाइल सलाम मसनून रज़ाए मुस्तफ़ा का ज़ाहिर दीदा ज़ेब और बातिन दिल अफरोज़। और अगू दुआ से नवाजा, अल्लाह ताला मजीद तरक्की बख्शे। जितने नौजवान पुत करिए कुछ। मैं अक्सर तकरीर करने बैठता हूँ ना तो परेशान हो जाता हूँ, जी केड़ी केड़ी दवाई दई है तो केड़ी केड़ी ना दई है, केड़ी केड़ी बीमारी केड़ी केड़ी मर्ज नूं छेड़ी है, केड़े केड़े ना। इसलिए पुत्र काम रो पुत्र, जितने बच्चे रोवो मेरे पुत्रो, अल्लाह दी बारगाह च नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च साडे कोल को काम ले, साडे कोल को मैं ते खत्म करन लगा जी। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग भाई बेटा जितने नौजवान ऐ जो उम्र तहज्जुद पढ़न दी, मेरे यार रे कख नहीं, नींदर ही नहीं पैंदी हूं खंग दी वजह नाल की पढ़ी। मैं नहीं ये कह रहा कि वो पढ़ी कबूल नहीं, ऐ जवानी ऐ जे पुत्र मेरे बच्चों, लेकिन याद रखना है तहज्जुद पढ़ के फिर किसी को दसना मौत होए तुम्हें दस शबाने दस मैं तहज्जुद बुला जिदे भी उठिया है उन्हें पता है